With our heads bowed, I would like to read from the sacred writings of the Bible, St. Matthew, the 7th chapter, 13th and 14th verses. And may the Lord add His rich blessings as we read them. अपने झुके हुए सरों के साथ मैं बाइबल की पाक तहरीर में से मुकद्दस मत्ती 7वें बाब की 13वीं और 14वीं आयत को पढ़ना पसंद करूंगा। और जैसे ही हम इसे पढ़ते हैं तो खुदावंद अपनी बरकत कसरत से नाजिल करे। Enter ye in at the strait gate, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destructions, and many there be which go in thereat. तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। Because strait is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Let us pray. क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। आए हम दुआ करें। O God, who brought again the Lord Jesus from the death and from the grave, and has presented Him to us this morning as a living sacrifice. ऐ खुदा, तू जिसने खुदावन यस्सु को दोबारा मौत और कब्र से निकाला और एक जिंदा कुर्बानी की तरह आज सुबह उसे हमारे सामने पेश किया है। We humbly dedicate our lives to Thee anew, on the thoughts that You would be so mindful of us. और हम फरोतनी से अपनी जिंदगियों को नए तौर से तेरे लिए मखसूस करते हैं, उन ख्यालों पर जिनसे तू हमें आगाह करेगा। While we were yet sinners, dead in sin and trespasses, You sent Your only begotten Son, made in the form of sinful flesh, to become a propitiation for our sins, that the innocent suffering for the guilty might reconcile us together again in fellowship with Thee. जबकि हम गुनाहगार ही थे और अपने ही गुनाहों में मुर्दा थे, तो तूने अपने इकलौते बेटे को भेजा ताकि गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में हमारे गुनाहों का कफारा दे, जो कि बेगुनाह था। वो गुनाहगारों के लिए दुख उठाए ताकि हमारी दोबारा तेरे साथ रफाकत करा दे। Oh God, if there is sin in our midst this morning, something that might hinder the Holy Spirit from bringing us the message of God to each of our hearts, we pray that humbly, Lord, You forgive us of our trespasses. और ऐ खुदा, अगर आज सुबह हमारे दरमियान गुनाह है और कोई चीज हमारी तरफ से खुदा के पैगाम को हम में से हर एक के दिल में रुल कुछ को रोक रही है, तो खुदावंद हम फरोतनी के साथ दुआ करते हैं कि तू हमारे कसूरों को माफ कर दे। Cleanse us by the blood of the Lord Jesus, और हमें खुदावंद यस्सु के लहू से पाक कर दे, whom we know in ourselves we are nothing, and we confess that we are nothing. और जैसे कि हम खुद जानते हैं कि हम कुछ नहीं हैं, और हम इकरार करते हैं कि हम कुछ नहीं हैं। But Thou art holy, Thou art true, Thou art righteousness, Thou art the very fountain of mercy. And we humbly crawl there today as penitent souls. लेकिन तू पाक है, तू सादिक है, तू ही रास्तबाज है, तू ही रहम का सरचश्मा है, और हम आजिजी से आज इस तरफ तरसती रूहों की तरह बढ़ रहे हैं। As the testimony has just went forth from Jamaica and from Puerto Rico, and where You have worked such great works. Oh God, it's the sign of the coming of the just one. जैसे कि गवाही के साथ जो कि बयान की गई है, जो कि जमैका और पोर्टोरिको में वाक़या हुई, और जहां तूने बड़े ही अजीम काम सरअंजाम दिए। ऐ खुदा, ये उस रास्तबाज की आमद की निशानी है।
how you delivered Brother Evans from the poisoned fangs of that serpent. Because he was a believer, and your words are always true. कैसे तूने भाई इवंस को सांप के जहरीले दांतों के जहर से रहाई बख्शी, क्योंकि वो एक ईमानदार है और तेरा कलाम हमेशा सच्चा है। Now, Lord, deliver us from the fangs of death this morning. Where the enemy has bitten and poisoned us. अब ऐ खुदावंद, जैसा कि दुश्मन ने हमें काटा और जहर आलूदा कर दिया, तू हमें आज सुबह मौत के जहरीले दांतों से रहाई बख्श। Let thy healing balm this morning, Lord, saturate our spirits and cleanse us from all unrighteousness. खुदावंद, आज सुबह अपनी शिफाइया मरहम लगने दे, हमारी रूहों को सैराब कर दे और हमें तमाम नाराजगी से पाक कर दे। Heal the sickness of the physical bodies that's broken down by the powers of the enemy. All that's in divine presence, may they be healed. और तमाम जिस्मानी बदनों को बीमारियों से शिफा दे जो दुश्मन की ताकत से टूट गए हैं, ताकि इस इलाही हजूरी में शिफा पा सकें। Speak to us now through thy written word, Lord, knowing not what to say, but thou wilt provide it. खुदावंद, अपने लिखे गए कलाम के वसीले से हमसे बोल। हम नहीं जानते क्या कहना है, लेकिन तू मुहैया करेगा। And you warn us, Lord, and make us ready for your coming. For we ask this in Jesus' name, and for his sake, amen. खुदावंद, तूने हमें आगाह किया है और हमें अपनी आमद के लिए तैयार कर। हम ये यस्सु के नाम से और उसी की खातिर मांग लेते हैं, आमीन। I'm always a little late because I'm waiting on Sunday schools, I guess, is out. क्योंकि मैंने अब इंतजार किया है और मैं हमेशा थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ, और मेरा ख्याल है कि संडे स्कूल खत्म हो गया है। But there's something about it when I come home, I just feel like I got plenty time. लेकिन यहाँ इसके मुतल्लिक कोई बात है। जब मैं घर आया तो मैंने इस तरह महसूस किया कि मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त है। You know, we're in too much of a rush anyhow. So we just go to believe God. आप जानते हैं कि हम किसी भी तरह बहुत तेज रफ्तारी में हैं, बस हमें सिर्फ खुदा पर ईमान रखना चाहिए। Our Lord was giving this stern warning to the people of His generation. The people that were very religious. हमारे खुदावन ने इस सख्त खबरगिरी को अपनी नस्ल के लोगों को दिया था, उन लोगों को जो कि बहुत ही मजबी थे। And he said, straight is the gate, and narrow is the way that leadeth to life, and few there'll be that'll find it. और उसने कहा था, क्योंकि दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। Now, that wasn't because they wasn't religious. They were very religious. अब ऐसा नहीं था कि वो लोग मजबी नहीं थे, वो बहुत मजबी थे। And because that they had trusted in the church and in certain creeds and denominations, and had believed to an extent in God, they thought everything was all right. वो अपने चर्च और खास अकीदों और तंजीमों पर एतकाद रखते थे और किसी हद तक खुदा पर भी भरोसा रखते थे। उनकी सोच थी कि हर एक चीज दुरुस्त है। But he was telling them that there would be few that would enter in. लेकिन वो उन्हें बता रहा था कि वो थोड़े हैं जो अंदर दाखिल होंगे। And I'm wondering this morning if I could not liken that generation to this generation. और मैं आज सुबह हैरान हो रहा हूँ, अगरचे मैं इस नस्ल का उस नस्ल से मुवाजना नहीं कर सकता। See, it was at the closing of the Jewish dispensation. And he was referring back to different ones and different endings of different dispensations. देखें, ये यहूदियों के निजाम का इख्तिताम हो रहा था
और वो पिछली कई मुख्तलिफ बातों का और मुख्तलिफ निज़ामों के मुख्तलिफ इख्तिताम का हवाला दे रहा था। And was telling them that the very thing that had been done in former dispensations was being done before them. And they failed to recognize it. और उन्हें बता रहा था कि बिल्कुल यही बात उन साबक निजामकारों ने भी की थी जो तुमसे पहले थे, और वो उस बात को पहचानने में नाकाम हो गए थे। And let's see some of the things that he was speaking about. आए उनमें से कुछ बातों के मुतल्लिक देखते हैं जिनके मुतल्लिक वो बता रहा था। They, for instance, could not believe that God was in that man. That was the biggest obstacle that they had to climb over, was how him being man yet made himself God. मिसाल के तौर पर वो लोग इस बात पर यकीन नहीं कर पाए थे कि उस शख्स के अंदर खुदा था, और ये सबसे बड़ी रुकावट थी जिस पर उन्हें काबू पाना था कि कैसे वो इंसान होकर अपने आप को खुदा बनाता है। They could not see how God could dwell in human flesh. And in all ages, and at all times, God has always dwelt in man. वो लोग इस बात को समझ ना पाए कि कैसे खुदा इंसानी जिस्म में सुकूनत पजीर हो सकता है, और तमाम वक्तों और तमाम जमानों में खुदा हमेशा इंसान के अंदर ही सुकूनत पजीर रहा है। Man is God's agent. In every generation, God speaks to His people through human lips. He always chooses someone or something that He can use. इंसान खुदा का कारिंदा है। हर एक नस्ल में खुदा अपने लोगों से इंसानी लबों से हम कलाम होता रहा है। उसने हमेशा किसी शख्स या किसी चीज का इंतखाब किया है जिसे वो इस्तेमाल करता है। And He referred to them as being such a stumble about Abraham. उसने उन लोगों को इब्राहिम के बारे में एक ऐसी हैरान करने वाली बात का हवाला दिया। He said, told them, if you call yourself the children of Abraham, Abraham your father, he saw my day and rejoiced to see it. Abraham the prophet. उसने उनको बताया, अगर तुम अपने आप को इब्राहिम की औलाद कहते हो कि इब्राहिम हमारा बाप है, तो उसने मेरा दिन देखा और वो खुश हुआ। इब्राहिम एक नबी था। And no doubt that Jesus was referring to them, that He had proved to them that He was Messiah, because the sign of Messiah was following Him. और इसमें जरा भी शक नहीं कि यीशु उन लोगों को हवाला दे रहा था, और उसने उनको सबूत दिया कि वही मसीह है, क्योंकि मसीहाना निशान उसकी पैरवी कर रहा था। And it had been that way through every generation, that the sign of the Messiah. और मसीह का निशान हर नस्ल के जरिए इसी तरीके से जाहिर होता रहा है। But yet Him making Himself God, the Messiah Himself, that stumbled them. They could not understand it. लेकिन अब वो खुद को खुदा बना रहा था और खुद को मसीहा बना रहा था। इस बात से उनको ठोकर लगी, वो लोग इसे समझ ना सके। Now when Abraham, who they call their father, met God, he was also in flesh. अब जब इब्राहिम, जिसे वो अपना बाप कहते थे, खुदा से मिला तो वो बदन में था। Because he eat the meat of a calf, eat cornbread, and drinking milk and butter in the presence of Abraham, and yet he was God. क्योंकि उसने इब्राहिम की मौजूदगी में बछड़े का गोश्त खाया, उसने मकई की रोटी और मक्खन खाया और दूध पिया, लेकिन तो भी वो खुदा था। Abraham recognized him, God, and called him Elohim, which is the Almighty Jehovah. इब्राहिम उसे पहचान गया कि खुदा है और उसे एलोहिम पुकारा,
जो कि कादरे मुतलिक यहोवा है। A man wearing clothes with dust on his body and sit under a tree for shade and eat meat and drink milk. एक इंसान के कपड़े पहने हुए, मिट्टी उसके बदन पर पड़ी थी और साए के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ गया और खाना खाया और दूध पिया। Then those cold, cruel-hearted, selfish, righteous Jews could not believe him to be the Son of God and called Abraham their father. लेकिन वो सर्द, सख्त दिल और खुद गर्ज और रास्त यहूदी उस पर खुदा का बेटा होने का यकीन न कर पाए और इब्राहिम को अपना बाप कहते थे। And he was letting them know that he was doing the same things in his flesh that God did in another flesh when he met their father Abraham. And Abraham believed it. And they couldn't believe it. और वो उन्हें करके दिखा रहा था कि जाने कि वो जिस्म में वही काम कर रहा है जो खुदा ने एक दूसरे जिस्म में किया था जब वो उनके बाप इब्राहिम के पास गया था, और इब्राहिम ने उसका यकीन किया लेकिन वो उसका यकीन ना कर पाए। You see, when Abraham was sitting under his tent because he had made a choice, and that choice is brought before every person that's born in this world. आप देखें, जब इब्राहिम अपने खेमे के नीचे बैठा हुआ था तो उसने एक इंतखाब किया, और यही इंतखाब हर एक शख्स के सामने जो इस दुनिया में पैदा होता है रखा जाता है। The tree of good and evil is set before every person. नेको बद का दरख्त हर शख्स के सामने रखा गया है। And when Lot, his nephew, and their herdsmen began to argue about the grounds, Abraham, being a just man, said to them, just let there be no arguments among us. You just choose your way of going. और जब लूत, जो कि उसका भतीजा था, जब उनके चरवाहों ने जमीन के मामले में लड़ना शुरू किया तो इब्राहिम ने एक आदिल इंसान होते हुए उनसे कहा, हम में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, तू अपनी राह जाने के लिए अपना इंतखाब कर ले। That place comes into every believer's life. And it's before you this morning, and it's before me. और यही मकाम हर एक ईमानदार की जिंदगी में आता है, और आज सुबह ये आपके सामने है और यही मेरे सामने है। Lot didn't think that he was going to backslide, but he went to looking towards Sodom where things were easy. And there's many times that we look towards the easy way. लूत ने नहीं सोचा था कि गुमराह होने जा रहा है, लेकिन वो सदूम को देखते हुए वहां चला गया जहां चीजें आरामदेह थीं, और ज्यादातर हम आगे बढ़ने के लिए आसान रास्ते को तलाश करते हैं। I'll join this certain church. And you see, nobody will say anything against it because it's the biggest church in the city. मैं फला कलीसिया में शामिल हो जाऊंगा, और आप देखें, इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि शहर में ये सबसे बड़ी कलीसिया है। The easy way. Many times we do that when we're wrong. आसान तरीका, कई मर्तबा हम ऐसा करते हैं जबकि हम गलत होते हैं। Remember, if you follow Christ, you will be hated by people. For all that live godly in Christ Jesus shall suffer persecutions. याद रखें, अगर आप मसीह की पैरवी करेंगे तो लोगों की जानिब से आपसे नफरत की जाएगी, क्योंकि वो सब जो मसीह यीशु में दीनदारी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं सताए जाएंगे। And if you come to Christ, you will not come by any church or any denomination or any creed. अगर आप मसीह के पास आते हैं तो फिर आप किसी कलीसिया या किसी तंजीम या किसी अकीदे की तरफ से नहीं आते। You'll come by the blood. That's the only avenue in. तो आप सिर्फ खून के वसीले आते हैं, क्योंकि यही वाहिद रास्ता है। And you cannot bring no one with you. You come alone and stand on your own confession.
your own faith. और ना ही आप अपने साथ किसी और को ला सकते हैं। आप अकेले ही आते हैं और आप अपने इकरार और ईमान पर खड़े हो जाते हैं। You'll not ride it on the pastor or on your mother's faith. You'll come as an individual when you come to God. आप पास्टर पर सवार होकर या अपनी माँ के ईमान पर सवार होकर नहीं आ सकते। जब आप खुदा के पास आते हैं तो आप अकेले ही आते हैं। And many times we make those foolish choices. और ज्यादातर हम उन बेवकूफ चीजों का इंतखाब कर लेते हैं। What if Lot, when he seen everything easy, he saw where there was much money and much popularity? क्या हुआ जब लूत ने उन सारी आरामदेह चीजों को देखा? उसने देखा कि वहाँ बड़ी धन दौलत और शोहरत है। Because he'd be a stranger and a smart man, educated, lot of psychology, and he could do certain things and yet maintain his religion. क्योंकि वो एक अजनबी था और एक ज़हीन और नफ्सियात में भी तालीम याफ्ता था। शायद वो कुछ मखसूस काम करके अपने मजहब को बरकरार रख सके। He thought, I've got faith in God, so I'll just go down into Sodom and I'll make some extra money. And I'll become a great man, maybe a wonderful preacher. उसने सोचा, मेरा ईमान खुदा पर है, इसलिए अब मैं सदूम में जाऊंगा और मैं कुछ ज्यादा दौलत हासिल कर लूंगा और मैं एक बड़ा आदमी और एक जबरदस्त मनात बन जाऊंगा। See, you have a choice to make. And the laity has a choice to make. गौर करें, आपको एक चीज का इंतखाब करना पड़ता है। आम लोगों को भी एक चीज का इंतखाब करना पड़ता है। I'll go down to this certain church. Everybody in town thinks this is the most, well, the mayor of the city belongs to this church. मैं वहाँ उस फलां कलीसिया में जाऊंगा। हो, शहर में हर एक ये सोचता है कि ये सबसे बढ़कर है। क्यों? इसलिए कि शहर का नाज़म इसी कलीसिया से ताल्लुक रखता है। Now he could belong to a church that was really good. But still you have to judge that church and its people by the scriptures. अब अगरचे वो एक कलीसिया से ताल्लुक रखता है जो कि अच्छा है, लेकिन क्या अब आपने कलाम मुकद्दस के मुताबिक उस कलीसिया और उसके लोगों का अंदाजा लगाया है? Sometimes they go because it's a popular way. The people dress better that go to certain places. That's where we make a fatal mistake. बाज औकात लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि ये एक हर दिल अजीज रास्ता है कि लोग अच्छे लिबास पहनते और फलां जगहों पर जाते हैं और इसी मकाम पर हम एक तबाहकुन गलती कर लेते हैं। Now notice this. And Abraham, the only thing he could do is take second choice. अब इस पर गौर करें, और इब्राहिम के पास सिर्फ एक ही चीज थी जो वो कर सकता था, दूसरा इंतखाब। And sometimes second choice is better than first. If it's took like that. और बाज औकात दूसरा इंतखाब पहले की निस्बत बेहतर होता है अगर इसे इस तरह लिया हो। Notice, wasn't long when Lot seen the big city. He didn't see his wife turning to a pillar of salto. He didn't see the fire burning up the city. गौर करें, तवील अरसा नहीं हुआ था जब लूत ने उस बड़े शहर को देखा। उसने अपनी बीवी को नमक का स्तून बनते हुए नहीं देखा था। उसने शहर पर आग बरसते नहीं देखी थी। But Abraham tucked away with the Lord's despised view. He stayed in the deserts. लेकिन इब्राहिम ने खुदावंद के कुछ अदना से रास्ते का इंतखाब किया। उसने बियाबान में क़याम किया। And yet what if Sarah would have said, now remember, Sarah was the prettiest woman in all the land. There was no woman as fair as Sarah. Everyone seen her, fell in love with her. और फिर क्या होता अगर सारा ने कहा होता, अब याद रखें, सारा उस पूरे मुल्क में सबसे खूबसूरत तरीन औरत थी। वहां कोई भी औरत सारा जैसी खूबसूरत नहीं थी। हर एक उसे देखता और उसकी मोहब्बत में फरिफ्ता हो जाता था। How easy it would have been for Sarah to take that kind of a choice. But she chose to stay with Abraham. अब इस किस्म का इंतखाब करने के लिए सारा के लिए कितना ही आसान रास्ता था,
लेकिन उसने इब्राहिम के साथ क्याम करने का इंतखाब किया। Oh, women, don't let the devil blind you. Being popular and joining this and that, you stay with Christ. हो ऐ औरतों, शोहरत और इस उसमें शामिल होने के लिए शैतान आपको अंधा करने ना पाए। आप मसीह के साथ क्याम करें। For the hour is at hand. Great destructions are laying ahead, worse than Sodom and Gomorrah for this country. Sodom and Gomorrah will be a credit to it. क्योंकि वक्त करीब है और इस मुल्क के लिए सदूम और अमूरा से भी बढ़कर ज्यादा बड़ी तबाही आगे पड़ी है। सदूम और अमूरा इससे भी बेहतर होंगे। Now, while Abraham had took the way that was given him by God and had the leanness of the land, he wasn't prosperous at all. अब जब इब्राहिम ने खुदा के दिए गए रास्ते का इंतखाब किया तो वो जमीन का उजाड़ हिस्सा था, वो किसी तरह से खुशहाल नहीं था। But yet he knew one thing, he served God and he believed God. So one day there came 3 men and they were well dusty and worn, and Abraham felt sorry for him. He said, come by and sit down under the oak just for a little while. लेकिन तो भी वो एक बात को जानता था कि उसने खुदा की खिदमत की है और उसने खुदा पर ईमान रखा है। बस एक दिन वहां 3 आदमी आए और वो गिर्द आलूदा और थके हुए थे और इब्राहिम ने उनके लिए हमदर्दी महसूस की। उसने कहा, इस तरफ आइए और थोड़ी देर के लिए इस बलूत के दरख्त के नीचे बैठ जाइए। And while he was standing there talking to them, he recognized that they weren't just ordinary men by their talk, they were different. और जिस दौरान वो वहां खड़ा उनसे बातचीत कर रहा था तो वो पहचान गया कि वो कोई मामूली इंसान नहीं। उनकी बातों से लगता था कि वो बड़े मुख्तलिफ हैं। And Abraham went and killed a calf and had it dressed and had Sarah to make bread and get ready to feed them. और इब्राहिम गया और एक बछड़े को ज़बह किया और उसे तैयार किया और सारा ने रोटियां तैयार की और उन्हें खाने को दिया गया। Now remember, 2 of them were angels. Angels in human flesh. And one of them was God himself. अब याद रखें, उनमें से 2 फरिश्ते थे। फरिश्ते इंसानी बदन में थे और उनमें से एक खुदा खुद था। And the one that was God had his back turned to the tent. और जो खुदा था उसकी पुश्त खेमे की तरफ थी। And Sarah stayed in the tent. I like to see a woman keep her place like that. Not going out and telling her husband what to do and every time someone comes around. और सारा खेमे में मौजूद थी। मैं इस तरह की औरत को देखना पसंद करता हूँ जो इस तरह अपने मकाम पर कायम रहे, ना कि हर मर्तबा जब कोई बाहर आए तो बाहर आ जाए और अपने शोर को बताए कि क्या करना है। But she stayed in the tent. No doubt maybe washing the dishes or doing something. लेकिन वो खेमे में मौजूद थी। कोई शक नहीं कि शायद वो बर्तन धो रही हो या कोई और काम कर रही हो। And this one who was God, he kept looking around towards Sodom and he told him what he was going to do. और जो खुदा था वो आगे सदूम की जानिब निगाह लगाए हुए था और उसने उन्हें बताया कि वो क्या करने जा रहा है। When 2 angels went down in there to preach the gospel, but one stayed in the back. That was the one that was God. और 2 फरिश्ते वहां खुशखबरी का प्रचार करने के लिए गए, लेकिन एक पीछे ही ठहरा रहा और वो खुदा था। And he said, I'm not going to keep from Abraham the secrets that I know, because he's going to be the heir of the world. और उसने कहा, मैं इब्राहिम से कुछ भी पोशीदा ना रखूंगा जो कि मैं करने को हूँ, क्योंकि वो दुनिया का वारिस होने जा रहा है। Oh, we got a right this morning, church, to know the secrets of the coming of the Lord. हो कलीसिया, आज सुबह हमने उस बख्शिश को हासिल किया है कि खुदावंद की पोशीदा आमद को जाने। For the blessed are the peacemakers, they shall be called the children of God. Blessed are they that do hunger and thirst, they shall be filled.
क्योंकि मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. मुबारक हैं वो जो दिल के पाक हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। Then if the church of the living God is to inherit the earth, there is no secrets kept from it. फिर अगर जिंदा खुदा की कलीसिया को जमीन का वारिस होना है, तो फिर इससे कुछ भी पोशीदा नहीं होना चाहिए। All the Father has told me, I have told you, said Jesus. And they could not believe him. यीशु ने कहा, वो सब जो बाप ने मुझे बताया है, मैं तुमको बताता हूँ, लेकिन उन्होंने उसका यकीन ना किया। So in the days of Abraham, as he was referring to them, he said that as Abraham was talking to the angel, and his back was turned to the tent. बस इब्राहिम के दिनों के ताल्लुक से वो उन्हें हवाला दे रहा था। उसने कहा, जैसे इब्राहिम फरिश्ते से गुफ्तगू कर रहा था और उसकी पुश्त खेमे की जानिब थी। And he told Abraham he is going to visit him with a child, and Sarah in the tent laughed. And he said, why did Sarah laugh? और उसने इब्राहिम को बताया कि वो उसे एक बच्चे से नवाजने को है, और सारा खेमे के अंदर हंस पड़ी। और उसने कहा, सारा क्यों हंसी? What was he showing? Why did Sarah laugh? वो क्या जाहिर कर रहा था? सारा क्यों हंसी? It was just a few hours before destruction when that took place. Just before destruction, that fire come from the heavens and burn up the city. And that sign was performed. जब ये वाकया हुआ तो ये तबाही से थोड़ा अरसा पहले हुआ था। जरा सा तबाही से पहले आसमान से वो आग नाजिल हुई और शहर को भस्म कर दिया, और वो निशान रूनुमा हुआ। And Jesus said, you do err to the great doctors of divinity, to a religious nation where literally millions were believers. और यीशु ने कहा, तुम गुमराह हो उनसे जो इल्मे इलाहियात के अजीम डॉक्टर थे, और एक मजहबी कौम से जहां वाकई लाखों ईमानदार थे। He said, you do err, not knowing the scriptures, neither the power of God. उसने कहा, तुम गुमराह हो इसलिए कि ना किताब मुकद्दस को जानते हो, ना खुदा की कुदरत को। To a generation like that, that were well-trained men, that were scholars and raised the church. बिल्कुल एक इस तरह की नस्ल को जो के बेहतरीन तरबियत याफ्ता इंसान थे, जो के आलिम और आलीशान कलीसिया थे। When a child was born, it was the property of the church. You had to be an Israelite. जब एक बच्चा पैदा होता था तो ये कलीसिया की मलकियत होता था, आपको एक इस्राएली ही होना पड़ता था। 8 days after your birth, it was circumcision, and you were an Israelite to begin with. और उनकी पैदाइश के बाद 8वें दिन उनका खतना किया जाता था, और वो पैदाइश ही से इस्राएली होते थे। And the priesthood came from the Levites, which were trained through hundreds of years in the scriptures. Yet Jesus said, you do err not knowing the scriptures. और कहानत लावियों से आई थी, जिन्हें सैकड़ों साल कलाम मुकद्दस से तरबियत दी जाती थी। फिर भी यीशु ने कहा, तुम गुमराह हो इसलिए कि किताब मुकद्दस को नहीं समझते। They know them in their own book of learning. They know it by their catechisms. They know it by their own theology. वो किताब मुकद्दस को सिर्फ अपनी तालीमी और इल्मी किताब के तौर पर जानते थे। But Jesus said you don't know it, the scriptures. Neither do you know the power of God. लेकिन यीशु ने कहा, तुम किताब मुकद्दस को नहीं जानते और ना ही तुम खुदा की कुदरत को जानते हो। If you'd have known Abraham, you'd know me. If you were Abraham's children, you'd know me, because Abraham rejoiced when he seen my day. Or he foreseen the day. अगर तुमने इब्राहिम को जाना होता तो फिर तुम मुझे भी जानते। अगर तुम इब्राहिम की औलाद होते तो तुम मुझे भी जानते,
क्योंकि जब इब्राहिम ने मेरा दिन देखा तो वो खुश हुआ, क्योंकि उसने पहले ही वो दिन देख लिया था। When I stood before him back there in a body of flesh and performed this, he knew it was me, and he called me Elohim. But here I do the same thing before you, and you call me Beelzebub. जब मैं वहां पीछे उसके सामने एक इंसानी बदन में मौजूद था और इसे अंजाम दिया था, तो वो जानता था कि मैं वही हूं, और उसने मुझे एलोहिम पुकारा। लेकिन यहाँ मैंने बिल्कुल वही काम तुम्हारे सामने किए हैं, और तुम मुझे बाल्ज़बुल कहते हो। Oh, they'd say, we have Abraham to our father. Call Abraham your father. हो, उन्होंने कहा, हम अपने बाप इब्राहिम से हैं, इब्राहिम को अपना बाप कहते हैं। He said, well, we belong to the church. We are a religious nation. We are great people. We are God's people. उसने कहा, क्यों? इसलिए कि हम कलीसिया से ताल्लुक रखते हैं, हम एक मजहबी कौम हैं, हम एक अजीम कौम हैं, इसलिए कि हम खुदा के लोग हैं। Jesus said, you are the devil is your father. यीशु ने कहा, तुम शैतान से हो और वो तुम्हारा बाप है। Would I liken that generation to this one? क्या मैं उस नस्ल का इस नस्ल से मुवाजना करूं? Today, when there is literally millions of people that profess Christianity, know no more about God than a Hottentot would know about an Egyptian night. आज जबकि यहाँ वाकई लाखों लोग मौजूद हैं जो मसीहत का इकरार करते हैं और खुदा के मुतालिक एक वैशी से ज्यादा नहीं जानते जितना कि वो शबे मिस्र के बारे में समझ रखता है।